Okay, my dear students, now I'm live in front of you. Are you okay? Are you listening my voice or not? Please write down in your chat box. Is my voice audible? Yes, very good, Cassis. So today we have to discuss about the invention of Vita Wong. Okay? So my dear students, I know section A or B. Yeah, good afternoon, good afternoon. Very, very good afternoon to all of you. So now don't write anything in your chat box. I have to say something that the invention of Vita Wong, has been taught to the class 7 section A or B, but some of my students of section C has complained about this chapter that they haven't learned, they haven't read about this chapter. That's why we have come back on this chapter once again to teach you. So there is some error. So my dear students, sorry for this. I have forgotten about it, and I have written Meadows surprise. So here it will be invention of Vita Wong and Knott's poem, chapter number 7. Invention of invention of Vita Wong. Okay. So chapter number 7, the invention of Vita Wong. Okay, Anjali. So you know this chapter has taught to all of you by me. This chapter has been taught to all of you by me. Okay. So let's start once again. Okay. Who are the oldest people you know, and what are the oldest things you have in your house, in your city, town, or village? How old are they? आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में जहां आप रहते हैं, वहां ये कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं, या उनमें से कौन एक ऐसे लोग हैं जो सबसे बूढ़े हैं, और कौन ऐसी चीजें हैं जो सबसे पुरानी हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे शहर में, छोटे शहर या गांव में, और अगर है तो वो कितने हैं, कितने वर्ष पुराने हैं? क्या आपने कभी have you ever wished that you were older? How you wish that you could grow up in a hurry? क्या आपने कभी यह इच्छा जाहिर किया है कि जानने का कि तो आप भी जो है एक दिन आएगा जब yes Ayush Anand, why are you raising your hand? You have to say something. If you have to say something, then you can write down in your chat box, and I would like to resolve your all kind of grievances. Okay, nice. Thanks a lot to Ayush Anand. So how old are they? यदि वे हैं तो कितने वर्ष पुराने हैं? That was a mistake. Okay, no problem. Yeah, mistake is also a part of our life. Okay, and when you make a mistake, it means
you are going to reform yourself. Okay, so mistake is a word which is not good to listen, but it shows us a good path. Okay, so never be upset about it. Let's begin. How old are they? वे कितने पुराने हैं? Have you ever wished that you were older? क्या आपने भी कभी इच्छा जाहिर किया है जानने का कि आप भी कभी बहुत बूढ़े होंगे? और क्या आपने ये इच्छा जाहिर किया है कि आप क्यों इतने जल्दीबाजी से बढ़ रहे हैं? ग्रो अप इन हरी, बहुत जल्दी में बढ़ रहे हैं, ऐसा भी होता है। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। मिस्टर विली वोंका जो है वह वोंका वाइट का आविष्कार करने की शुरुआत कर रहे हैं। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट व्हिच मेक्स पीपल यंगर, जो लोगों को बहुत नवयुवक बनाता है। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, वोंका वाइट बहुत प्रबल भी है, मजबूत है। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, इसलिए कि कुछ लोग जो है विलुप्त हो जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र जो है वह माइनस हो जाती है। One person actually becomes minus 87, और वोंका वाइट को पीने से कोई एक व्यक्ति अगर पी लेता है तो सचमुच में वह जो है -87 अर्थात 87 वर्ष वह जो है माइनस में चला जाएगा। इट मीन्स कि आप वोंका वाइट पी लेते हैं और आपकी उम्र अभी 15 साल है, 13 साल है, तो उसको पीने के बाद आप 87 इयर्स माइनस ओल्ड में चले जाइएगा। तो 13 अभी से घटा दीजिए प्लस और उसको माइनस कर दीजिए, तो आप जो हैं कितने साल के हो जाएंगे? 74 इयर्स। Which means he's got to wait 87 years before he can come back. अब इसका मतलब है कि इसको पीने से आपको 87 इयर्स जो है इंतजार करना पड़ेगा आपके फिर से उस वास्तविक उम्र में आने। समझ रहे हैं? मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट न्यू थिंग। मिस्टर विली वोंका एक नई चीजों का आविष्कार करते हैं। Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to walk. मैंने पुनः rolled up मतलब ये इसको स्लीप कहते हैं, ठीक है? इसको ऊपर किया और काम करना शुरू कर दिया। Set to walk it means begin to walk. Once again I squeezed my brain, मैंने पुनः अपने दिमाग पे जोर दिया। Searching for the new recipe, नई तकनीक को खोजने के लिए, नई निर्देश को बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। I had to create age, मुझे उम्र का निर्धारण करना था। To make people older, oldest, हा लंकेश्वर खुश हुआ। और मुझे लोगों को बहुत बूढ़ा, इतना बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, सबसे बूढ़ा बना देना है। हंसने लगा। राइट, मैंने जोर से चिल्ला के बोला, for now the ideas were beginning to come, और उसी वक्त अब मेरे दिलो दिमाग में विचार आना शुरू हो गए थे। What is the oldest living thing in the world? इस संसार में सबसे पुरानी सजीव वस्तु क्या है? That what lives longer than anything else, जो किसी भी चीज से, किसी भी सजीव वस्तु से बहुत अधिक दिनों तक रहता है, वो चीजें क्या है? एक ट्री चार्ली सेड, एक चार्ली नामक लड़का है जो मिस्टर विली वोंका को कहता है कि शायद यह एक वृक्ष हो सकता है ना? जैसा कि हमारे एक गांव में बुढ़वा बौर था जिसको आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि कब इसका उत्पत्ति हुआ। जिसने भी देखा कहा जब से मेरा जन्म हुआ हम इसको तब से देखते ही आ रहे हैं। वो मेरे विरासत, मेरे गांव का वो गिर गया है, अब उसका अस्तित्व थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन उसकी उत्पत्ति के बारे में किसी लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि यह वृक्ष कब का था,
कितने वर्ष पुराना था, कब इसकी जो है विकास हुआ, इसकी किसी के पास कोई ऑथेंटिक पता नहीं। ठीक इसी चीज के आइडिया लगाते हुए और चार्ली ने कहा कि एक वृक्ष हो सकता है। चार्ली तुम ठीक कह रहे हो, मिस्टर विली वोंका ने कहा, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, किस प्रकार की वृक्ष? ओके, नॉट द डॉगलस फॉर, नॉट द ओक, नॉट द सेडा, नॉट yes, yes, yes. I was muted. That's why, because that's why it was not clear. Yes, voice is not audible. Now I think my voice is audible. My voice is audible, okay, or not? Yes, very good. Fantastic, fantastic. Yes, listen carefully. Okay. So उन्होंने कहा कि ब्रिसलकॉन पॉइंट जो है और व्हीलर पीक पर आज भी है ना, जो 4000 वर्ष पुराना है। दिस इज फैक्ट, यह सच है, यह सच है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जिनको बहुत सारा ज्ञान होता है वन वृक्ष के बारे में। You like and look that word up in the dictionary when you get home. Dendrochronologist का आप जो है शब्दकोश में अर्थ देख सकते हैं। So that started me off, इसलिए अब मुझे repeat this para। चलो हम अब पढ़ाते हैं। You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today। आप पा सकते हैं ब्रिसलकॉन पाइन वृक्ष को व्हीलर पीक चोटी पर आज भी, जो 4000 वर्ष पुराना है। दिस इज फैक्ट, यह सच है चार्ली कि आप कोई आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट मींस जो वनस्पति के बहुत बड़े ज्ञाता हो, है ना, जो पेड़ पौधे के बारे में बहुत विशेषज्ञता हासिल कर ली हो, एक्सपर्टी हो। ओके, सो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से आप पूछ सकते हैं यदि आप चाहें, या तो आप देख सकते हैं इसके अर्थ को शब्दकोश में जब आप घर जाओगे, है ना। विल यू प्लीज, क्या आप प्रसन्न हो? सो दैट स्टार्टेड मी अप। अब मुझे इस इन्वेंशन की शुरुआत करने दो। आई जंप इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। मैं एक कूदा ग्रेट ग्लास एलिवेटर में, एंड रश ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं पूरे विश्व का भ्रमण किया, खास तौर पे स्पेशली हम इकट्ठा करने के लिए खास आइटम सबसे पुराने पुराने सजीव वस्तुओं से, यानी सजीव वस्तुओं से, जो सबसे पुराने सजीव वस्तु हैं उनसे मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया सारे वस्तुओं को। ठीक है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में वह बता रहे हैं कि उन्होंने किसका वो शुरुआत किए थे। उसमें ये सबसे पहले था
a pint of sap, a pint of sap from a 4,000 year old bristlecone pine, है ना। प्रिंट का मतलब होता है लस्सा, आप कह सकते हैं, द्रव कह सकते हैं, है ना। और सैप का मतलब होता है पिंट ऑफ सैप, है ना, रस, यानी एक लस्सेदार रस जो है उन्होंने लिया एक 4,000 वर्षीय ब्रिस्टलकोन पाइन जो वृक्ष है उससे, पहला चीज इन्होंने लिया। दूसरा द टोनेल, टोनेल, टोनेल का मतलब जानते हैं, वह जो आपके पैर के जो पंजे के जो टो होते हैं उसके नाखून, है ना, उसको टोनेल कहते हैं। वो जो है क्लिपिंग, है ना, क्लिपिंग फ्रॉम ए 100, उसको काटते हुए, द टोनेल क्लिपिंग यानी पैर के पंजों के जो नाखून है उसको काटते हुए उन्होंने काट के लाया था एक 168 वर्षीय रूसी किसान से, जिसका नाम पेट्रोविच ग्रेगोरोविच था। उसके पैरों से उसका टोनेल को काट के लाए थे, जिसकी उम्र 168 वर्ष थी। इसका घर रूस में था। उसके बाद तीसरा उन्होंने जो लाया, ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ये इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए, वो इकट्ठा कर रहे हैं वो वोंका व्हाइट बनाने के लिए, मिस्टर वोंका जो है ना। एन एग लेड बाय 200-year-old ततोइच बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ चोंगा, चोंगा के राजा से संबंध रखने वाले एक 200 वर्षीय कछुए के एक अंडा को उन्होंने लिया था। उसके बाद द टेल ऑफ ए 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया, अरब में रहने वाले 51 वर्षीय एक घोड़े की पूंछ को उन्होंने काट के लाया था, मतलब पूंछ के बाल लाए होंगे जो भी हो। द विस्कर्स ऑफ ए 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, एक उसके बाद विस्कर, विस्कर मतलब क्या होता है मालूम है? वो होता है मुछ, मुछ, विस्कर्स बड़ा बड़ा देखते होंगे, निकला हुआ रहता है। तो वह जो है एक 36 वर्षीय बिल्ली जिसका नाम क्रम्पेट था, उसके मुछ को वह लाए थे। क्रम्पेट मीन्स एक प्रकार का केक भी होता है। An old flea which had lived on crumpets for 36 years, उसके बाद वह एक बूढ़ी फिली, फिली मतलब होता है मक्खी, है ना, उसको वह लाए थे जो 36 वर्षों तक उसी एक प्रकार के केक पर रहा था। The tale of a 207-year-old giant rat from Tibet, उसके बाद वह एक 207 वर्षीय तिब्बत में रहने वाले जायंट राक्षसी रैट, चूहे का वह जो है टेल लाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे इस पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि अब 5 मिनट बचे हैं। तो आप जो है चैट बॉक्स में कुछ लिखिए और बताइए कोई प्रॉब्लम है। अंडा clear. So now only 5 minutes remain. That's why I have stopped to teach you. So I'll start this chapter tomorrow. Okay, Anjali?
Cases. If anyone has any problem, then you can write down. I would like to sort out all your grievances and your problems here. Okay, Gungun or Dr. Ni. हिंदी मीनिंग ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट हमने बताया ना हिंदी नो साहब नो प्रॉब्लम अनन्या डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट डेंड्रो वो वनस्पति वैज्ञानिक होता है वन विज्ञान वेरी गुड पहले ही बोल दिए थे ना if anyone has any problem yes write down your chat Ayush Anand so what is Tonga yeah Tonga is a place Tonga is a kingdom Tonga is a small you can say कितने चैप्टर्स आने यस 1 to 6 to 7 एग्जाम में कितने लेसन तक आएगा 6 to 7 ओके और टोंगा का मतलब वही होता है ना वैसे टोंगा का शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसे नहीं होता है टोंगा एक स्थान का नाम होगा आयुष आनंद जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है क्योंकि ये स्पष्ट लिख रहा है किंग ऑफ टोंगा है ना सो इट विल बी अ प्लेस और नथिंग एल्स वैसे एग्जाम में 6 to 7 चैप्टर से ही हमने कवर करने की कोशिश किया है और उतना ही से आने की संभावना है ओके अंजलि ओके ओके आयुष ओके देवयानी